9, which is mentioned in manual as experiment number 9, but actually it is experiment number 8. And the object of this experiment is that to prepare the solution of NaOH, that is sodium hydroxide of 0.1 normal in 100 ml and standardize, and then dilute the stock solution, which is 0.1 normal to 0.05 normal in 50 ml and standardize it. As you know that in the previous semester, we have performed the same experiment of solution preparation as जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने जो है बिल्कुल ऐसा ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जो कि सोल्यूशन प्रिपरेशन का था, बट उसमें हमने सोल्यूशन प्रिपरेशन की थी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, और यहाँ पे हम सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, सोल्यूशन प्रिपरेशन कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की. अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल if we talk about the theory of this experiment, first of all, the question arises here is that what is a standard solution? Standard solutions क्या होते हैं? Basically हमारे पास वो solutions जो कि accurately known strength के होते हैं या फिर हमारे पास known concentrations के होते हैं, वो standard solutions कहलाते हैं. हमारे पास standard solutions दो तरह की हैं, primary standard solution और secondary standard solution. Primary standard solutions क्या होते हैं? Primary standard solutions are the solutions which are highly pure in nature, and they are highly stable on the storage. If we provide the proper storage condition, they become unchanged, or their concentration does not change with the time. प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस की जो कंसंट्रेशन है वो विद टाइम चेंज नहीं होती अब हम उसे प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन प्रोवाइड करें, ठीक है. और दे डोंट हैव एनी वाटर ऑफ हाइड्रेशन because they are highly pure, or they are generally high molecular weight compound, or they contain very less impurity, very low amount of impurity is present in primary standard solutions like 0.01 to 0.02%. और जनरली अगर हम एग्जांपल्स की बात करें प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस की, तो हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इसकी, लाइक सोडियम कार्बोनेट, benzoic acid, potassium hydrogen thalate. On the other hand, if we talk about the secondary standard solutions, secondary standard solutions are the solutions which are highly impure, and their concentration changes with time. If we talk about the primary standard solution, they are 99.9% pure, but secondary standard solutions are highly impure solutions. और जनरली हम जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन की जो स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं वो थ्रू प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशंस करते हैं, क्योंकि प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशंस हमारे पास हाईली प्योर होते हैं, तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशंस की जो कंसंट्रेशन होती है वो हम डिटरमिन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन. Then we have stock solutions. Stock solutions are the solutions of higher concentration, and if we talk about the diluted solutions are the solutions of lower concentration. और generally जो diluted solutions है उनको prepare किया जाता है through stock solution. Stock solutions को हम working solutions भी कहते हैं क्योंकि higher concentrations के हैं, तो इनके through हम easily diluted solution prepare कर सकते हैं. Like अगर हमारे पास 0.1 normal का solution है, तो अगर हम इससे डाइल्यूशन बनाना चाह रहे हैं 0.01 नॉर्मल की, तो 0.01 क्या होगा? नॉर्मल डाइल्यूटेड सोल्यूशन होगा, और जिसको हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं किसके थ्रू? 0.1 नॉर्मल. और 0.1 नॉर्मल यहाँ पे एक्ट करेगा थ्रू स्टॉक्स एज अ स्टॉक सोल्यूशन, और जो 0.01 नॉर्मल होगा वो हमारे पास एक्ट करेगा डाइल्यूटेड सोल्यूशन के तौर पे. अच्छा जी, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होती है? As I have already told you in the last semester कि स्टैंडर्डाइजेशन हमारे पास बेसिकली एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम अननोन कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं किसी भी सोल्यूशन की बाय द हेल्प ऑफ नोन कंसंट्रेशन. लाइक मैंने एज आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब दैट कि सेकेंडरी सोल्यूशंस जो है वो हमारे पास हाईली प्योर नहीं है, वो इम्प्योर हैं. अगर आपने लाइक 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाया सेकेंडरी स्टैंडर्ड का, तो विद टाइम इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? चेंज होगी.
तो उस कंसंट्रेशन को आप किसकी मदद से डिटरमिन कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ नॉन स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन, और वो नॉन स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन जो होगी वो प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन की होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव अच्छा जी, स्टैंडर्डाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो स्टैंडर्डाइजेशन में हम टाइट्रेशन का ही प्रोसीजर फॉलो करते हैं, बट देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन टाइट्रेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन. Titration is all about that we are dealing with the volume in the titration. In titration, we can determine the unknown volume with the help of known volume, while in the standardization, we are talking about the concentration. और स्टैंडर्डाइजेशन में जो अननोन सोल्यूशन होगा उसे आप ब्यूरेट में रखेंगे, और जो नोन सोल्यूशन होगा उसे आप हमेशा किस में रखेंगे? उसे आप रखेंगे हमेशा कॉनिकल फ्लास्क में। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव व्हाई वी आर परफॉर्मिंग हियर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहली चीज ये कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारे पास सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, और बहुत सारे एनालिटिकल प्रोसीजर्स में हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। और जब भी वेन एवर यू आर गोइंग टू यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट यू हैव टू स्टैंडर्डाइज द सोल्यूशन, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपने जिस कंसंट्रेशन का सोल्यूशन प्रिपेयर किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो एग्जैक्ट कंसंट्रेशन है या नहीं। उस एग्जैक्ट कंसंट्रेशन को आप डिटरमिन करने के लिए क्या यूज करेंगे? स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसीजर यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास सेकेंडरी बेस है, और इसके अलावा ये हाइग्रोस्कोपिक भी है। हाइग्रोस्कोपिक ये क्यों? हाइग्रोस्कोपिक होने की वजह से ही ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, क्योंकि ये क्या करेगा? ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, और जब ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, ये बेस है हमारे पास, तो आप इसको जो स्टैंडर्डाइज करेंगे वो प्राइमरी एसिड से करेंगे। अब वो प्राइमरी एसिड हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड भी हो सकता है और पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट भी हो सकता है। अच्छा जी, here I have mentioned here the equation of the oxalic equation of the oxalic acid with sodium hydroxide. 1 mole of oxalic acid required 2 mole of sodium hydroxide, or when oxalic acid reacts with the sodium hydroxide, so we obtain sodium oxalate and water. Basically it is basically it is the neutralization reaction in which acid reacts with base to make salt and water. अच्छा, वी टॉक अबाउट द प्रोसीजर। सबसे पहले आप क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप जो होगा, आप अमाउंट कैलकुलेट करेंगे NaOH की इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन, और इसको आप बनाएंगे 100 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। जैसा कि ऑब्जेक्ट में गिवन है कि आपको 100 ml में ही बनाना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया 100 ml। अच्छा, अगर हमारे पास कोई भी वॉल्यूम नहीं दिया गया होगा तो आप 1 लीटर एज्यूम करेंगे, आप उसे 1 लीटर में प्रिपेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि आपको 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन प्रिपेयर करना है 100 ml में, तो दैट्स व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग दी 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ NaOH इन 100 ml। सबसे पहले आप अमाउंट कैलकुलेट करेंगे अमाउंट के फॉर्मूले से, देन डिसॉल्व करेंगे जो वे अमाउंट होगा NaOH का, उसको क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे डिस्टिल वाटर में। आप एग्जैक्टली पूरा 100 ml डिस्टिल वाटर एक साथ नहीं लेंगे, आप क्या करेंगे? पहले 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में कुछ अमाउंट में आप डालेंगे क्या? डिस्टिल वाटर, और उसमें NaOH अच्छे तरीके से पहले डिसॉल्व करेंगे, देन वॉल्यूम मेकअप करेंगे अप टू 100 ml। उसके बाद आप क्या करेंगे? स्टैंडर्डाइज करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। एक्चुअली क्या करेंगे आपने 0.1 नॉर्मल का सोल्यूशन बना लिया NaOH का। अब आप अमाउंट कैलकुलेट करेंगे 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड के लिए अमाउंट के फॉर्मूले के थ्रू, और क्या करेंगे? जो आपने NaOH प्रिपेयर किया उसे आप ब्यूरेट में लेंगे, और जो आपने ऑक्सैलिक एसिड आपने किस में प्रिपेयर करना है? कॉनिकल फ्लास्क में। ठीक है, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड आपके पास प्राइमरी स्टैंडर्ड है और इसके थ्रू आप NaOH की कंसंट्रेशन को डिटरमिन कर रहे हैं, तो ऑक्सैलिक एसिड आप लेंगे कॉनिकल फ्लास्क में और NaOH लेंगे आप ब्यूरेट में। सॉरी, यहाँ पे बाय मिस्टेक पोटाशियम हाइड्रोजन
थैलेट मेंशन हो गया, बट यहाँ पे 10 ml, करेक्शन प्लीज कि यहाँ पे 10 ml ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है। उसके बाद आप फिनोफ्थलीन को यूज करेंगे एज इंडिकेटर। जब भी आपके पास एसिड बेस रिएक्शन हो रहा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो आप क्या यूज करेंगे, फिनोफ्थलीन। और जब भी न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होगा बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो यू विल यूज फिनोफ्थलीन। और अगर आपके पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तब भी आप यूज करेंगे फिनोफ्थलीन। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ऑक्सैलिक एसिड तो वीक एसिड है, बट सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हेयर फिनोफ्थलीन एज अ इंडिकेटर। अच्छा जी, उसके बाद आप क्या करेंगे, आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH, आपको डाइल्यूशन प्रिपेयर करनी है NaOH से, जो कि 0.1 नॉर्मल का NaOH जिसकी आपने स्टैंडर्डाइजेशन कर ली है, आप उससे क्या करेंगे, डाइल्यूशन प्रिपेयर करेंगे 0.05 नॉर्मल। 0.1 नॉर्मल क्या आपके पास स्टॉक सोल्यूशन है, और 0.05 क्या है, डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, और इसको आपने प्रिपेयर करना है 50 ml में। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे अब NaOH का अगेन अमाउंट का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, जो आपका 0.1 नॉर्मल NaOH का सोल्यूशन प्रिपेयर किया है आपने, उसी में से वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे इन ऑर्डर टू मेक द डाइल्यूशन ऑफ 0.05 नॉर्मल NaOH। बट ऑक्सैलिक एसिड के लिए क्या करेंगे, ऑक्सैलिक एसिड के लिए आप अगेन अमाउंट के थ्रू 0.05 नॉर्मल का जो है वो वॉल्यूम का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे 0.05 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड के लिए, सेम अमाउंट के फॉर्मूले से, और उसको 10 ml डिस्टिल वाटर में जो वे अमाउंट होगा आपका 0.05 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड, उसको क्या करेंगे, वो जो अमाउंट है ऑक्सैलिक एसिड का, उसको 10 ml वाटर में क्या करेंगे, कॉनिकल फ्लास्क में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। और आप क्या करेंगे, आपको क्योंकि कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग लेनी है, तो आप अगर आपके पास दो सेम रीडिंग आ जाती हैं तो आप थर्ड पे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास दो सेम रीडिंग नहीं आती तो देन आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जब तक आपके पास दो सेम रीडिंग नहीं आएंगे, आप ये प्रोसीजर रिपीट करते रहेंगे। और अगेन आप यूज करेंगे फिनोफ्थलीन एज अ इंडिकेटर। और आपके पास जो कलर चेंज होगा वो क्या होगा, कॉनिकल फ्लास्क में था आपके पास एसिड, आप डालेंगे जब फिनोफ्थलीन, तो आपको पता है कि फिनोफ्थलीन जो है वो कलरलेस होता है एसिडिक मीडियम में, बट इट टर्न्स पिंक इन केस ऑफ एसिड। अच्छा जी, देन वी हैव दी ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। सबसे पहले जो आप कैलकुलेशन करेंगे वो प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन होगी। आप अमाउंट कैलकुलेट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, एज यू नो दैट अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मेलिटी इंटू ग्राम इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय 1000। हमारे पास नॉर्मेलिटी क्या है 0.1, और ग्राम इक्विवेलेंट वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, molecular weight divided by a number of acidity or basicity और number of electron release or gained। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट है सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो क्या है 40, और वॉल्यूम क्या है रिक्वायर्ड, वॉल्यूम रिक्वायर्ड है 100 और डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 0.4 ग्राम ऑफ NaOH दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक 0.1 नॉर्मल NaOH। आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेप इज द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन। अच्छा, जो आपने ये NaOH का सोल्यूशन प्रिपेयर किया है 100 ml में, अब आप इसे क्या करेंगे, इसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जब आपने इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, फिल करेंगे ब्यूरेट में। उसके बाद आप ऑक्सैलिक एसिड की प्रिपरेशन करेंगे। ऑक्सैलिक एसिड का कैसे होगा, नॉर्मेलिटी है 0.1, ग्राम इक्विवेलेंट वेट 63 है, क्योंकि आपको पता है ऑक्सैलिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 126 है। जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड में हमारे पास 2 हाइड्रोजन आइंस हैं, तो क्या होगा कि 2 से डिवाइड होगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 63 होगा। दैट्स व्हाई वी हैव मेंशन्ड हियर द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एज 63। उसके बाद जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो है 10 क्यों है, क्योंकि हम कॉनिकल फ्लास्क में 10 ml ले रहे हैं, डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 0.063 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। आप इतना ऑक्सैलिक एसिड लेंगे और उसे 10 ml जो कि डिस्टिल वाटर है कॉनिकल फ्लास्क में उसमें डिसॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होगी, आपके पास एक ब्यूरेट रीडिंग आएगी, आप क्या करेंगे, ऑक्सैलिक एसिड जो आपने कॉनिकल फ्लास्क में लिया है उसको आप क्या करेंगे, नाउ टाइट्रेट करेंगे किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड पे।
जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से आप टाइट्रेट करेंगे, आपके पास जो रीडिंग आएगी उसके बाद आप सेकेंड रीडिंग भी लेंगे, जो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आएगी वो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आप पुट करेंगे इस फॉर्मूले में इन ऑर्डर टू डिटरमिन द नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH. N1V1 is all about the oxalic acid and N2V2 is all about the sodium hydroxide. As we know, oxalic acid की जो normality है वो 0.1, volume है 10 and N2 is the normality of sodium hydroxide which you are going to determine, and volume is the burette reading which you are going to obtain, और ये हो जाएगा आपके पास 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय ब्यूरेट रीडिंग. तो आपके पास अब जो आंसर आएगा यहाँ पे जब आप पुट करेंगे ब्यूरेट रीडिंग को तो आपके पास क्या आएगी, नॉर्मेलिटी जो कि NaOH की होगी, एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी. अच्छा जी, जो ब्यूरेट रीडिंग होगी, रिमेंबर दैट यू हैव टू टेक द कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग, टू सेम रीडिंग, नॉट एवरेज. अच्छा जी, उसके बाद फर्स्ट यू हैव, जब आप डिटरमिन करेंगे 0.1 नॉर्मल NaOH की कंसंट्रेशन को, उसके बाद आप प्रिपेयर करेंगे डाइल्यूशन. अब आपके पास जो जितनी नॉर्मेलिटी आई है उसको आप पुट करेंगे इस फॉर्मूले में. N1V1 is equal to N2V2. N2 is 0.05, that is the dilution which you have to prepare, dilution of NaOH, और वॉल्यूम कितना है 50 डिवाइडेड बाय N1. N1 आपके पास वो रीडिंग जो होगी वो जो आपने लास्ट जो है आपने जो डिटरमिन की थी स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू, जो नॉर्मेलिटी आपने डिटरमिन की थी वो आप पुट करेंगे यहाँ पे, जो कि कैलकुलेटेड वैल्यू होगी. उसके बाद आपके पास आ जाएगा V1, जो कि हम एज्यूम करें XML, आपके पास जो भी आएगी वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे. इसका मतलब है कि XML आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द डाइल्यूशन. आप इतना वॉल्यूम उठाएंगे 0.1 नॉर्मल से और 50 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में उसको लेंगे और उसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे अप टू 50 ml बाय डिस्टिल वाटर. तो इस तरह से आपके पास डाइल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगी किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, और उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी 0.05. अब जो ये आपने डाइल्यूशन प्रिपेयर की है 0.05 की, अब आपको कैसे कंफर्म होगा कि 0.05 है या नहीं. आप क्या करेंगे, जैसे आपने 0.1 नॉर्मल को स्टैंडर्डाइज किया था इसी तरह से आप क्या करेंगे 0.05 नॉर्मल की जो डाइल्यूशन प्रिपेयर की है उसको क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन. अब आप क्या करेंगे, अमाउंट कैलकुलेट करेंगे अगेन ऑक्सैलिक एसिड का 0.05 नॉर्मल के लिए. 0.05 नॉर्मल के लिए अमाउंट के फॉर्मूले से, तो 0.05 क्या है, नॉर्मेलिटी है, 63 क्या है इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, 10 क्या है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000. तो अब आप जो अब आप अमाउंट उठाएंगे वो उठाएंगे 0.0315 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, और इसको डिस्टिल वाटर 10 ml डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करेंगे कॉनिकल फ्लास्क में. और जो आपने डाइल्यूशन प्रिपेयर की थी 50 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में NaOH की, उसको आप लेंगे ब्यूरेट में, और आप अगेन लेंगे क्या, कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग लेंगे, और उसी कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग से, उस कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग से आप अगेन जो आपके पास प्रीवियसली स्टैंडर्डाइजेशन का जो फॉर्मूला N1V1 इज इक्वल टू N2V2, यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड है और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे जो 0.1 है उसे अब आप रखेंगे 0.05, क्योंकि अब आप डाइल्यूशन की डिटरमिन कर रहे हैं कंसंट्रेशन के आया ये आपके पास 0.05 का है या नहीं है. तो यहाँ पे आप रखेंगे 0.05, यहाँ पे रखेंगे 10, और यहाँ पे N2 एज इट इज आ जाएगा और ब्यूरेट रीडिंग आ जाएगी. जो भी ब्यूरेट रीडिंग आएगी उसे यहाँ पे रखेंगे 0.05 आ जाएगा, और 0.05 इंटू 10 डिवाइडेड बाय ब्यूरेट रीडिंग, तो ये आ जाएगी आपके पास N2. तो क्या हो जाएगा, अब आपने क्या डिटरमिन कर ली 0.05, जो आपने सोल्यूशन प्रिपेयर किया था 0.05 नॉर्मल का, वो क्या किया आपने, उसकी कंसंट्रेशन डिटरमिन कर ली. इसके बाद आप क्या करेंगे, ये कैलकुलेशन करने के बाद आप रिजल्ट लिखेंगे. रिजल्ट में आप क्या लिखेंगे, रिजल्ट में आप ये लिखेंगे कि द कंसंट्रेशन फॉर 0.1 नॉर्मल NaOH after standardization was found to be itne normal, and the concentration for 0.05 normal NaOH after standardization was found to be इतने नॉर्मल. अगर ये कंसंट्रेशन 0.1 नॉर्मल या 0.05 नॉर्मल से कम या ज्यादा आती है तो आप क्या करेंगे, डिस्कशन में इसको डिस्कस करेंगे. थैंक्स टू ऑल. अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे, मैं आप लोगों को एक क्विज जो है
वो क्लासरूम में शेयर कर दूंगी। काइंडली आप लोग क्या करेंगे, उस क्विज को आप लोग सॉल्व करेंगे, और जब उस क्विज को सॉल्व करेंगे तभी आप लोगों की अटेंडेंस मार्क होगी। Allah Hafiz to everyone. That's all for this lecture. Next time we will talk about the essay of benzoic acid, which is the experiment number 9. Or till then, Allah Hafiz and stay blessed.